So, hello everyone. First of all, thank you very much for showing such an amazing response and love in our previous episodes. We had seen a lot of response of you guys in our Women's Day special episode. So, yeah, today we are back with a bang episode with our amazing founders of Campus Binge. We have Rishitab and also Devans with us today. So, yeah, what is Campus Binge? I'll let you know, guys, that Campus Binge is the coolest college community which helps college students in accommodation, and also the guys organize a lot of good events which help students to enjoy their weekends in Bangalore and also other places. And the guys also provide good internship opportunity to the college students. Yes, so I'll also ask Ristab. So could you please give us a background about yourself and the ones so that our audience can Yeah. So first of all, thank you so much for having us here. Really humbled. And we basically come from Dehradun. And I started Campus Binge when I was in my second year of college, Delhi University, Ramjas. I was doing statistics honors. It started as an Instagram page, and then it grew and grew and grew to the point that we were able to pursue it full time. Right. So I come from a stats background. I have a keen interest in startups. Nice. Devansh joined us in 2022. Yeah, so actually, I had known that Rishi was doing something, and because we were friends from Same class. from same school, Same school, yeah. we're from the same school, so I knew that he's doing something. So later on, I started showing interest, and he explained to me what his vision was, what his idea was, and after listening to that idea, I was on board. So first, I basically interned with them also, and then I joined full time in 2022 as a founding team member. Nice. So which school you guys are from in India? Brightlands, Dehradun. Brightland School. And also, DU में what क्या होता था कि so we used to meet also a lot. He used to come visit us, Okay. and then final semester we were sort of living together only. So हमारा तब आप भी रामजस से same course statistics. नहीं, I'm from a different college. It's called Swami Shraddhanand. मैंने उधर से B.Com किया है. Oh. But हाँ ये था कि because ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग मिलते रहते थे आपस में. And for in the last semester के बीच में कुछ हफ्ते मेरे साथ ही रहा. अरे Yeah. बढ़िया तो दोस्ती आज सबको आराम से बोलना चाहिए. आपका दोस्ती है nice. Congratulations to you all also. And yeah, so could you please tell like what is your motivation behind starting this Campus Binge scheme? What problems you guys faced in your initial days in college? Yeah. See, when I first moved from Dehradun to Delhi, right? Yes. So moving to a new city at 17, 18 years of age, so a bubble burst in my life. मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया, right? And I'm an elder son, but so छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं है. So I genuinely felt a need to have like a student support network. तो ऐसे करके we started with Campus Binge, right? And in college, basically we are from the COVID batch, so everything was happening online. Online. तो एक जगह Zoom पे classes चल रही हैं, एक जगह यहाँ पे काम चल रहा है, तो उसको बढ़ाते गए चल रहा है. बढ़िया है. So कोविड से बहुत लोगों को फायदा भी और नुकसान भी और कोविड बेनिफिशियल फॉर. Nice. So a question or like in this same field, like if you guys were in college, what do you think like you guys problems faced by you in DU, like you guys are established in Bangalore now, so ऐसा क्या हुआ कि like DU में आप लोगों को वो अगर आप अपने कॉलेज डेज में होते तो how campus will be beneficial for you there? See, I would say कि having like this support network, चाहे वो Bangalore हो, चाहे DU हो, चाहे कोई भी college हो, Yes. if you are moving out of your own city, so you're going out of your comfort zone, so you would need some support because भाई question तो same ही है ना. Okay. आपको चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, चाहे आप प्राइस जाओ, कौन से भी कॉलेज में जाओ, आपको वहाँ पे जाके नहीं पता कि भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, कहाँ से तुम्हें बेस्ट कोचिंग मिलेगी, कहाँ से तुम्हें बेस्ट स्किल अपस्किलमेंट कोर्स मिलेगा, कहाँ तुम्हें डेट पे जाना है, कहाँ तुम्हें क्या करना. सो all of these things require somebody, or you probably ये प्रॉब्लम आपकी सीनियर सॉल्व करते हैं, आप कैंपस बेंच कर लोगे. नाइस बिल्कुल सही चीज आपका कि लाइक मैं भी अपने कॉलेज में हूँ तो फर्स्ट ईयर में हम लोग अपने सीनियर के पीछे भागते रहते. फिर सीनियर बोलेगा आज टाइम नहीं है तो कल आना, कल वो जो एक अल्टीमेट बड़ा भैया होता है कॉलेज का, वो बनाना है. या दैट इज इक्वल्स टू कैंपस बेंच. नाइस. बट हमारे भी काफी सारे मेंटर्स रहे फर्स्ट ईयर्स में जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया. अब जैसे वो पास आउट हो गए तो वी डोंट हैव एनी सीनियर ना, तो
we should have some people like helpful for us. जैसे कि मैं एक tier 2 सिटी से, I'm from कानपुर उत्तर प्रदेश, तो जब मैं आया तो मेरे तो काफी कुछ नई नई चीजें थी, एकदम बैंगलोर एकदम नया सेम हमारे लिए भी जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी गए. Yeah, what is campus bench? Can you explain, elaborate on the part कि which all services you guys are providing? क्या क्या फील्ड में कर रहे हैं आप? So I'll tell you one thing. I'll tell you the basic problem statement. इंडिया में 3.7 करोड़ बच्चे हैं वो स्टडिंग इन कॉलेजेस एंड यूजी एंड पीजी कोर्सेज. 80% ऑफ देम आर माइग्रेंट स्टूडेंट्स. आप कानपुर से बैंगलोर आए, हम देहरादून से दिल्ली गए, मैं भी देहरादून से दिल्ली गए. Right? Moving to a new city at 17-18 years of age is a big jump in some aspect, right? So campus bench is like that big elder big brother figure for students in colleges, like a one-stop solution for everything they need. It is essentially a community. Community is structured in the form of teams in different colleges, which we call chapters. Okay. So, for example, there is a Rice Central chapter of Campus Bench, NMIMS chapter of Campus Bench, SJCC chapter of Campus Bench. These are coming up, right? Okay. ये क्या करते हैं? They connect with the students, build a good brand image, help them, guide them, उनके webinars, seminars करा दे, कुछ events करा दे, keep the students engaged, give them a parallel college life, जो चीजें college में नहीं हो पा रही extra curricular college के बाहर करा दे. उसके बाद now coming on to the businesses and services. So currently we provide them with accommodation. So we have our own housing brand by the name of Puzzles Living, operating 900 beds and 12 buildings in Bangalore. Apart from that, we also have an apparel business. So क्या हो रहता है? Customized hoodies, jackets, you know, fest में college में. So that also we provide. So it's 2-3 business services we have, but our main product right now is the community, which we are focusing on scaling. Since we are bootstrapped, so we need to generate revenues to sustain our growth. So that is why we have all these businesses. Okay, nice. So you guys are mostly focusing on this Puzzles Living accommodation services. That also, yes. And other brands also. Nice. So do you guys own these accommodation places, or it's working in a franchising model? How this is working? So this is what you call an asset light model or an OYO model. Okay. So how OYO operates is like they're not the ones who are owning that building, or they're also not the ones who are leasing them. Who leasing it? So they partner up with some local operator who is going to open up a hotel anywhere. So that is what we do. We partner up a local operator who's going to open up a PG anywhere. Okay. And we like we instead of you going the traditional route of naming it, Giving them the brand value of. and now we will give you a brand. Right? Brand. We know how to make a brand. That is our expertise. Okay. So we made that brand. So Puzzles में that is how we work. एक लोकल पार्टनर है, वो पैसे लगाता है, वो बिल्डिंग उठाता है, हम उसको ब्रांड देते हैं, रिकग्निशन देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉफिट में से थोड़ा परसेंटेज लेते हैं. Nice. तो like you guys have different flats in Bangalore. तो आपके टीम members will always be there in those buildings, और कि वो operation उस बंदे का होता है, the owner of the building, कैसा रहता है, किस branding, management, community management, sales हमारा काम है. Okay. So we also appoint student resident managers, like a class monitor होता है ना, वो 50 बच्चों में से एक को बना दो, तो वो हम कर देते हैं usually RPG में. And day to day maintenance और building वाला काम वो operator का रहता है, वो उनका staff समझते हैं. Okay. Nice. तो दूसरा क्वेश्चन तो बस यही आ रहा है कि अब आप देख रहे हो कि जब मैं बैंगलोर आया, बड़े बड़े ब्रांड जो मार्केट में, मायरूमी, स्टैंजा, योर स्पेस, तो व्हाट इज योर इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी? क्या आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक यूज करी स्टार्टिंग में अपने इस स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए? सिंपल है, पजल्स का कांसेप्ट वाज स्टूडेंट लिविंग फॉर स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है, सिंपल वो कांसेप्ट है, स्टूडेंट रन विद स्टूडेंट मैनेज, एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो, एंड वी नो ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट अ स्टूडेंट हैज. Parents want them to be in a secure place, food अच्छा होना चाहिए, हाउस क्लीनिंग होनी चाहिए, तो we make sure कि ये सारे पैरामीटर्स चेक रहते हैं, and then in general we are good at what we do, right? And हमारी buildings, जो हमारे PG operators buildings भी प्रिपेयर करते हैं, they are generally more spacious, better looking buildings, right? So we build good buildings, student friendly management रखते हैं, student friendly थोड़े rules रखते हैं, and बच्चों के साथ ना कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्ड रहता है कि भैया आप लोग हो तो कुछ ना कुछ करेंगे. So that really helps. So that is why Puzzles skyrocketed. Okay. 450 beds in 2022, 700 beds in 2023, अभी 900 हो जाएंगे. हर साल on an average almost 200-250 बेड नई बिल्डिंग खोलते हैं हम लोग. Right? Because that is also because हमारी existing building में retention इतना high रहता है. Yes. Nice. तो ये really like ये the concept of for students by the student, I really liked it. मैं फर्स्ट ईयर में नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं किस पीजी में रहता था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम जैसी इशू पता है तुम कौन से पीजी में रहते थे. आप तो सब जानते हो, बट बात ये है कि वो प्रॉब्लम यही होती है कि वो वहाँ का जो मैनेजर होगा, हम उनके पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि यहाँ इस ऐप में अपनी एप्लीकेशन डालो, फिर वहां से ऑपरेट होगा. वो ब्यूरोक्रेसी देख रहे हो पूरी? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि बहुत खासकर सिक्योरिटी डिपॉजिट हो तो हर बंदे के साथ में लड़ाई होती, इतनी लड़ाई हो. अभी भी मेरा बहुत पैसा, मतलब 2 महीने करेंट उस पीजी में ही फंसा हुआ है, और मैं इधर फ्लैट में मूव कर गया.
अभी यही इसी को सॉल्व करने के लिए सो पजल्स में ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीच आउट टू योर स्टूडेंट प्रेसिडेंट मैम. किसी लोग SRM के पास चले गए, वो प्रॉब्लम तुम्हारी हमारे तक पहुंचाएगा और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे. हाँ वही, मतलब कि डायरेक्ट वो बंदा एक लड़का ही मतलब कोई बंदा हमारे साथ वाला ही होगा, वो ज्यादा अच्छे से उस प्रॉब्लम को समझता है कि हाँ खाना, हम बोलेंगे खाना बेकार है, वो बोलेगा अरे है तो खाना, क्या प्रॉब्लम है. तो वो जब तक अपना कनेक्ट नहीं हो रहा तक वो चीज. और इसमें एक इनसाइट और होती है ना, खासकर बैंगलोर में नॉर्थ से बहुत बच्चे आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटरी लोकल पीजी के ओनर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. हमारे में वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एलिमिनेट होगी ना. समझ गए. हाँ, और मैंने एक और चीज नोटिस करी है, हर पीजी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती, बट प्रॉब्लम ये नहीं होती कि मेरा पंखा खराब है, खराब है. प्रॉब्लम होती है फर्स्ट पर्सन रिस्पांस का, कि सबसे पहले रिस्पांस कौन कर पा रहा है. बाकी पीजीज में यूजुअली ओनर फोन नहीं उठाता है. हमारे में एटलीस्ट अगर हमको काम कराने में एक हफ्ता लग भी रहा है, बट हम एटलीस्ट फोन उठा के जवाब देते हैं कि हाँ कि ये प्रॉब्लम है. बहुत फर्क पड़ता है फर्स्ट रिस्पांस. दे ऑलवेज नो यू, आपका एक पर्सनल टच भी रहता है कि हाँ इस भैया है, हमसे अप्रोच कर सकते हैं, तुरंत बात किया, कॉल किया. आई मीन दैट वो तो एक बेनिफिट है ही कि हम उनकी एज ग्रुप के बहुत करीब है. समझ गए. दैट इज ऑलवेज अ बेनिफिट. नाइस. You really explained the best way कि what is campus building, how the puzzles living brand, आप कैसे बिल्ड करो उस चीज को. या तो हम लोग अपने हर पॉडकास्ट में we have this one fun segment, so I also have this one fun segment, rapid fire round. Okay. So you have to give every question in just three something like that. So the first question will be describe your brand in just 3 words. कि क्या वो 3 words हैं इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Cool, amazing, lots of potential. Nice. Do you have 3 words? I would say elder brother figure. Oh, nice. That's actually cool. Yeah. And the next question is that कि 3 feedbacks which you have got from your services till now कि आपको. So I'll tell you one feedback which जिसके ऊपर मैंने काफी कुछ सीखा. Okay. So once what happened was कि this is related to puzzles. So we had sold a bed basically, and because of some miscommunication वो बेड हमको किसी दूसरे बंदे को अलॉट हो गया, एंड हमने क्या करा कि जो इनिशियल सोल ली थी उसको सेकंड फ्लोर पे दे दिया. बेसिकली द रूम इज एग्जैक्टली द सेम, बट द कस्टमर एट दैट पॉइंट ही रिफ्यूज्ड. ही वाज लाइक कि नो, what you had promised me, you have to give me that. You promised me on the first floor. I know it's the exact same room, but उसको पीजी से कोई दिक्कत नहीं थी. He left on principles कि जो आपने प्रॉमिस किया, I cannot, अब मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप आगे फ्यूचर में जो बोलोगे तो वो क्या होगा. तो वहां से मेरे को सीखने को काफी कुछ मिला कि हाँ भाई, if you are promising something, if you अगर कोई वर्ड आपने दिया तो you have to be true. Of course. This is the like principles पे जब कोई चीज काम करती है, you have to कि आपने जो डिलीवर करने का प्रॉमिस किया वो होना चाहिए वहाँ पर. ऐसा ट्रस्ट जो कि आजकल पीजी वाले नहीं करते. वो 15 पेज का एग्रीमेंट होगा उनका, उसको पढ़ते आप थक जाओगे. आपके पापा साइन करके गए हैं, अब बच्चा तो के पास इतना टाइम नहीं है, कॉलेज की तो पढ़ाई हो नहीं पा रहा, एग्रीमेंट कौन पढ़ेगा बैठ के, वो बताएंगे एग्रीमेंट में मेंशन था. तो वो चीज ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि होता है. हम लोग बोलते हैं कि मैंने एग्रीमेंट साइन किया, बट वो नहीं हो पाता है. नाइस. तो 3 words, व्हाट इज योर टिपिकल डे एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर. अभी आप 3 words में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? Hectic, thrilling, fun. Nice. I would be close to that. Hectic, sometimes maybe tiring also, but always happening. Nice. Yeah, and 3 major mistakes like you guys have did and what lessons we have learned from it till now. I'll take 2 of these mistakes. You question 1. So one of the first mistakes, काफी चीजें सही भी करी है, काफी चीजें गलत भी. One of the first mistakes would be hiring the right team, right? So when you begin work, you make the first set of team, the first set of people you bring on board. So you make sure कि you bring people rather than skill set, value system भी same होना चाहिए, ठीक है? And you bring in people who are more very serious to work. So this is something that we have dealt with a lot. Like काफी लोग आए चले गए. Second mistake that we have probably done is I would say probably maybe thinking, अभी thinking change हो गई है, but thinking from a money first approach rather than a consumer first value driven approach रखना is always better. हमने so for example जब मैं starting में during college when I was learning how to monetize the community, तो उस समय मेरी हमने कुछ campaigns ऐसे करे, कुछ businesses हमने ऐसे भी करे, जैसे ऐप डाउनलोड्स, गिग इकोनॉमी वाले काम होते हैं जिसमें हम एक्चुअली स्टूडेंट को कोई वैल्यू नहीं दे रहे, बट वो मनी ड्रिवन अप्रोच से कर रहे थे, राइट? तो उससे कुछ बिल्ड तो हुआ नहीं, पैसा आया, दुकान चली, कोई दिक्कत नहीं, बूटस्ट्रैप कहीं से तो करेंगे, राइट? बट उससे लेकिन अब थिंकिंग ये है कि कंज्यूमर ड्रिवन अप्रोच, मतलब मैं अपनी टीम्स को भी ये समझाता हूँ, तुम्हारे कॉलेज में भी जो हमारी टीम है, कि
कंज्यूमर ड्रिवन अप्रोच से सोचो कि बच्चे को क्या चाहिए, अगर तुम उसके लिए फुटबॉल टूर्नामेंट भी करा रहे हो तो कोई उसको रिसीव करने के लिए होना चाहिए, कहीं पे गाने होने चाहिए, रिफ्रेशमेंट, मतलब पूरा एक्सपीरियंस अच्छा होना। यस थर्ड मिस्टेक और आई वुड से कि थोड़ा सा हमेशा हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। एट वन साइड यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, राइट, बट यू आल्सो हैव टू प्लान फॉर द शॉर्ट टर्म कि भाई आप नेक्स्ट 2 days में, नेक्स्ट 3 days में लोग ये नहीं कि बस सोच लिया कि 2 साल बाद हमारा ब्रांड यहाँ पे है। आप उस महीने कुछ नहीं किए, 2 साल बाद जब ये लोग, ये भी है कि काफी बार ऐसा भी हुआ है कि भाई हम लोगों ने मान लो कोई इवेंट उठाया है, कुछ करा है, तो उसमें मैं आगे की मैं बहुत सोचा भाई हाँ ये इवेंट ऐसे हो जाएगा, इतने टिकट बिक जाएंगे, इतना हो जाएगा, तो बहुत अच्छा ऑन लगेगा, ग्राउंड, लेकिन बट फिर आपने उस समय आपने छोटी छोटी चीजें उसमें मिस कर दी बिगर पिक्चर में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भी प्लान। सही है। आपने भी हमारे कैंपस में वो फुटसल इवेंट कराया, मैंने देखा कि हाउ द टीम वर्कड एंड ऑल। शी इज वेरी, मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो आपका मैनेज करती सब, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग की कैसे सब मैनेज करी। ऑनलाइन मीडिया में मैंने देखा कि आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, और ये भी चीज मैंने देखी कि आप लोग टीम को कैसे, मतलब आपने अगर फुटबॉल वाला इवेंट कराया तो जो बंदा हैंडल कर रहा है फुटबॉल में एक एक्सपर्ट था कैंपस में, क्योंकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट भी आराम से, क्योंकि सारे उसके फ्रेंड्स ही कैंपस में। जो आपने सेंट्रल कैंपस में बैडमिंटन कराया तो मैंने वहां भी देखा। अच्छा, अभी आपने को कुछ वाटर बॉटल का किया था, वो तो व्हाट इज वो वाटर बॉटल का, मुझे थोड़ा इसके बारे वो एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग था। यशवंतपुर कैंपस ऑफ क्राइस्ट में जो हमारा चैप्टर है, दे वांटेड टू डू समथिंग ऑफलाइन फॉर द स्टूडेंट एंगेजमेंट, एंड देयर इज दिस स्टार्टअप बाय some students from that campus only by the name of Markmate. तो वो लोग क्या करते हैं, वाटर बॉटल में आपकी लेबलिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, सो लाइक काइंड ऑफ सरोगेट मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि ऐसा करते हैं, तो उन्होंने दिन भी ऐसे पकड़े 4 या 5 तारीख की, जब प्राइस में नृत्य हो रहा है, कैब्स का भी कुछ हो रहा है, कबमा का भी कुछ चल रहा है, एंड बाकी कैंपस से टीम्स आ रखी है। तो उन्होंने कहा ऐसे क्रेट पे क्रेट लाते हैं बॉटलों की, जा जाके डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और उनको डायरेक्ट पहुंचा भी देते हैं क्रेट करके। तो जब मैं उनके कैंपस में घुसा तो हर वो कैफेटेरिया में हर टेबल में कैंपस बेंच की बॉटल थी, तो मतलब वो उससे इतना ब्रांड अवेयरनेस हो, सो दैट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। kudos to the team and kudos to Markmate team. So आपको permission, how you guys got the permission and all from the college? They did it in association with the permission from one of the organizations in place. उनका permission लेके अंदर एक sort of a stall put up किया था. They manage it on their own. अब so we hire good it's people. It's a free water bottle आप बस. Yeah. मतलब you might have seen on Instagram also the freewater.io, free पानी इधर के पाकिस्तान में भी है. So like this is basically they're using water bottles as advertising space. Advertising पे एक label है. I really liked it कि मैंने पहली बार देखी ये चीज, तो मैंने थोड़ा सर्च किया इसके बारे में, क्या जैसे आपने बताया फ्री पानी चीज की आपको मार्केटिंग। पानी एक ऐसी चीज है जो कि हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, और जब वो पानी इस टाइम पे तो इतना गर्मी हो रही है, तो बैंगलोर में थोड़ा भी वाटर क्राइसिस भी चल रहा है, वाटर क्राइसिस भी चल रहा है, तो बिल्कुल आपने वो जो सॉल्यूशन निकाला वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट, द राइट टाइम एट द राइट स्पेस। एंड as I was saying, kudos to the team also. Yeah, of course, they were smart, they arranged everything, सब उन्होंने रिसोर्सेज लगा दिए थे उसको। नाइस। सो द अनदर थिंग इज दैट कि a lot of student entrepreneurs, मैंने देखा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत सारी फील्ड, मतलब इस फील्ड में जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट। बैंगलोर में जो क्रेज है इनका इवेंट का, आप देख रहे हो कितना ज्यादा, टिकट्स का तो कोई वही नहीं, प्राइस 1000 से 1 लाख तक टिकट जा रही है। अभी क्रिकेट हो रहा है, तो इस स्पेस में बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे घुसना चाहते हैं कि मतलब दे हैव द गुड कॉन्टैक्ट्स कि कैसे टिकट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे सेल करना है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कुछ ट्रिप्स ट्रैक्स, हर चीज। बट हर चीज को स्टार्ट आजकल कैसे हो रही है कि कम्युनिटी बनाना है, जो कॉलेज में कम्युनिटी होती, हर बंदा ये चाहता है कि मैंने देखा कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो इस कम्युनिटी में बनाना चाहते हैं। तो व्हाट की आप इनिशियल एडवाइस क्या दोगे कि कहाँ से वो स्टार्ट करें, द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर व्हिच आर फोकसिंग टू मेक अ कम्युनिटी? See, the thing is कि obviously पहले कस्टमर्स आपके फ्रेंड्स फैमिली में से ही होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली में से ही होते हैं। एंड द थिंग इज कि आप अगर स्टार्टिंग में लेट्स से कोई इवेंट कराना है, 50 लोग का नहीं करा सकते, 5 लोग भी आपने जोड़ लिया और करा दिया, तो उन 5 लोग को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे दो कि वो अगली बार 50 लोग कहीं से आपके लिए जोड़ के लेंगे। सो द वे टू फॉर्म अ कम्युनिटी इज इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 entities, right? We as a company and all the humans, right? All the people are part. So it's always a give and take वाला रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी में। देखो पहली चीज तो होती है हुक, कि आप बेसिक आपका एंट्री पॉइंट क्या बोल के कि हम इवेंट्स कराने वाली कम्युनिटी है, कि हम ट्रिप्स कराने वाले हैं, कि हम तो एक हुक होता है। उसके बाद क्या होता है कि गिव एंड टेक होता है आपके ऑडियंस के साथ, कि उनको अगर कुछ वैल्यू दिया है तो दे विल ओनली कम बैक टू यू व्हेन यू आर लाइक
constantly giving value to them, right? Communities dead बहुत जल्दी होती है. WhatsApp ग्रुप बनाना 1000 बच्चों का वही मुश्किल काम नहीं है, चीज, ठीक है? वो ऐसा मुश्किल नहीं काम है. नहीं है, वो डेड हो वही जाता होता है है कि हमारे usually campus एक में. गोल के अराउंड वो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होता है. जैसे ही वो गोल कंप्लीट होता है, लेट्स से एक ट्रिप कराने लेके जाओ, हाँ. तो ट्रिप के अराउंड वो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म हुआ. हाँ. अब ट्रिप हो गई, गोल खत्म. उसमें ट्रिप के ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन बाद उसमें लोग फोटोज भेजेंगे, फिर ग्रुप में. अच्छा. तो ये भी एक छोटा लेवल है. सो यू कैन टेक अ लुक एट इट एट अ माइक्रो लेवल की एंगेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट. Engagement जैसी वो एक ट्रिप हो गई तो उसके बाद तुरंत बात चला दो कि भाई दूसरी ट्रिप भी तो जा कि सकते अब हैं. अगर बैंगलोर में कुछ और भी हो रहा है तो हम उसमें उससे रिलेटेड कंटेंट Yeah. बनाएं. अब जैसे आजकल स्टूडेंट का क्या है कि उनको बैंगलोर में से आप बीबीए स्टूडेंट है, तो मैं एज अ बीबीए स्टूडेंट मैं बहुत सारी कम्युनिटीज का पार्ट हूँ कि बट स्पेसिफिक होती है अगर वहाँ पर बैंगलोर में कोई स्टार्टअप इवेंट हो, मैं अपने दोस्त के साथ हर वीकेंड में निकल जाता हूँ. बहुत बड़े बड़े मतलब दुबई से रिलेटेड रियल एस्टेट हाँ. इवेंट अगर हो रहा है तो भी go there and enjoy the party. We don't want to buy a Dubai property, but we go just to enjoy that कि क्या कैसे रियल एस्टेट कैसे मार्केट चल रहा है. कबन पार्क में कोई कुछ हो रहा है तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं. तो हमें सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती है कम्युनिटी से कि कोई क्या इवेंट हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, कोई ट्रैक्स जा रहा है, तो उसके बारे में जब आप किसी चीज़ से बात सही है आपका कि एक वो कम जो रेगुलर एंगेजमेंट जैसे आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग तो विन विन भी होना चाहिए कि मतलब मेरे भी बेनिफिशियल हो. सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने वो कम्युनिटी ओनली मतलब एडमिन ओनली मैसेज हो कि वही डालना है. दैट शुड नॉट बी देयर कि हम भी कुछ मैसेज डाल सकें. नाइस. Yeah, so the other thing that कि what we are also doing here कि outreach is a student entrepreneurs community कि हम win-win कैसे करते हैं कि like we guys are giving you the आप कुछ काम कर रहे हो and why you guys are कि आपका एक marketing हो जाता है कि we all know that कि marketing costs a lot these days because जो brand मतलब Instagram Meta ads Google ads कितना हो चुका है but what on ground की लोग आजकल फोन पे हैं फोन पर हैं हर आदमी जानता है एक बंदे की brand value से. तो we are utilizing the brand value of host अपने podcast के host कैसे हैं कि then we help them in marketing the products and all. So that's we are also building in Keystone. अच्छा कर रहे हो आपके मैंने पॉडकास्ट भी देखे तो बढ़िया लगा. Thank you very much. Yeah, so we can also plan. Did you guys have conducted any sessions like you guys have conducted a lot of offline events अभी आपने किए? You guys done any online thing like a lot of LinkedIn building, resume building? Have you done anything like that? Internally for the team, yes. Okay. जो हमारे चैप्टर टीम्स होते हैं उनको इंटरनली ट्रेन किया जाता है. Okay. क्योंकि अगर आपको आपके सर पे क्राउन रख दे इसका मतलब नेसेसरली ये नहीं कि आप राजा बन जाते हो. जस्ट बिकॉज आपको टीम बना दी पोजीशन दे दी इसका मतलब ये नहीं कि आप राजा बन गए. इसलिए सीखना पड़ेगा. तो उनके लिए कराया है, पब्लिकली भी लोगों के लिए करा था. अभी नियर पास्ट में नहीं कराया, पहले करा रखा है ना, अभी फ्यूचर में कराएंगे. ओह नाइस. अभी आप लोग अपनी टीम के लिए कराते हैं then you are Yes, उनको तो सिखाते हैं. हाँ नाइस. मैंने आपका फॉर्म भी देखा था कि उस फॉर्म में ये जो क्वेश्चन था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि if you would be the king of your college what do you want to do. मुझे उस टाइम पे रह गया था. बट ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए दिमाग अगर आप अपने कॉलेज के किंग होते तो क्या वो एक चेंज होता जो आप लाने चाहते हैं अपने. यार अगर मैं क्राइस्ट में किंग होता तो मैं पहले कहता कि अटेंडेंस 50%. 50%. आई वुड से कि अटेंडेंस जहाँ तक मुझे लगता है कि 50% आप कॉलेज चले जाओ बहुत है, सीख लोगे उतने में. बाकी भाई बच्चों को चाहिए कि बाहर भी आपको बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ वो कॉलेज वाली लाइफ ही नहीं कि बस कॉलेज के अंदर बैठ के उस रूम में बाहर मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे हो कि व्हाट द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग इज नॉट सिमिलर टू द इंडस्ट्री, हाउ द इंडस्ट्री लुक्स. ऐसा कुछ है ही नहीं जो कॉलेज दे रहा है वो तो यूजफुल हो ही नहीं रहा ना. वो जो the value we know that discipline and all it's useful. The brand value of a college also matters कि हाँ आप कहाँ से आ रहे हो, आपका brand value matter होता है. They are engaging thing मतलब कि मैं सोचता हूँ कि कॉलेज में है काफी सारी engaging चीजें कि आप जानते हो कि डिफरेंट कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं वो हमारे अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हैं. बट इफ स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स तो क्यों ऐसा उसको कंपलसरी करना चाहिए. बात सही है आपका. नाइस. सो एक और फाइनल क्वेश्चन कि अगर आप लोग अभी कैंपस बिंज यू गाइस आर if campus is not there what you guys are working on कि किस चीज पर आप काम कर रहे होते. यार there were a lot of ideas. I would say कि initially मेरे को तो 11th class से ही था when I was in my 11th standard. From then only I had wanted to be in this field. I want to start something off. So I would have been doing something like this. मेरा एक पहले events के around I had an idea. Okay, so might have been exploring that. Could have been in a job. We don't know the possibilities, but mostly जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ कर रहा है. आपका कुछ not campus bench statistics का यूज कहाँ हो रहा है? दो चीजें हो रही थी. या तो मैं कुछ और कर रहा था काम, कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही, क्योंकि बिजनेस तो मैंने फर्स्ट ईयर आके देख लिया था डीयू में. मुझे चुल्ला हो गया था कि करना है कुछ, तो मैंने कैंपस में उसी को सोच के भी बनाया. नहीं तो या तो मैं अभी एमबीए कर रहा था जैसे मेरे घर वाले चाहते.
Exactly. Nice. Yeah. Yeah, thank you very much. You guys have given a lot of response, like different questions. हाँ. Our audience also get to know about you guys. Ki what is campus means, what is purpose living, and how is useful like making a good community in college. कि आप जानते हो कि you guys have to put up efforts for doing anything. अगर आपके पास कोई idea, you have to collaborate. Like भैया mentioned कि there is a company called Markmate Solutions in in YPR campus. Yeah, how they collaborate with them. उन्होंने अपना marketing कैसे किया and how we help our marketing also किया. अपने हर टेबल में वो campus bill का bottle देखा. Nice. Thank you very much. Thank you so much. Yeah, thank you very much. Thank you so Yeah, much. we had a small gift for you guys. Okay. This is for you. Thank you so much. For us, this is what we have. Thank you very much for this. Oh wow. Thank you. Thank you so much, guys.